Hey guys, welcome back to my channel. My name is काजल कर्माकर और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है, as you can tell. Anyway, on this platform, I share everything I love with the people I care for. वैसे तो आप लोग DIY क्रंची देखने आए हैं, लेकिन this video is a little more than that. तो अपने कुर्सी की पेटी बांध ले और शुरू करते हैं. तो इस कहानी को शुरू करने के लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस स्क्रंची को बनाना was not the biggest deal here, but ये जो फैब्रिक आप देख रहे हैं, this is very precious for me, very, क्योंकि ये राउंड फिगर 15 साल पुराना एक फैब्रिक है जो fortunately I have, और इसका क्रेडिट मेरी मम्मी को जाता है because she still kept the fabric and I'm glad that she did it. अदरवाइज ये फैब्रिक मिलता ही नहीं और ना ही आपको ये वीडियो देखने को मिलती. नाउ चलते हैं 15 साल पीछे, जब मैं पढ़ती थी केवी कालिम्पोंग में. सो इफ एनीवन इज वाचिंग हु नोज मी फ्रॉम केवी कालिम्पोंग, प्लीज कमेंट डाउन बिलो. एनीवे, तो वहाँ से मेरी स्कूलिंग मोर और लेस स्टार्ट हुई थी. एंड लाइक एनी अदर स्कूल, हमारा भी एनुअल डे होता था जिसमें बच्चे परफॉर्म करते थे. एंड आई वॉज लकी इनफ, आई वॉज करेजियस इनफ टू टेक पार्ट इन इट एंड आई डिड अ ग्रुप डांस जिसमें मैं फ्रंट रो में थी. मैं बचपन में बहुत कुछ करती थी एंड आई गेस हम सभी बचपन में बहुत कुछ करते थे, लाइक क्रिएटिविटी वाइज भी. इवन हम सब बहुत कुछ करते थे और आई थिंक 15 सालों में हम खो से जाते हैं एंड काफ़ी कुछ छूट जाता है. लाइक इफ़ आई लुक बैक 15 years from now, बहुत कुछ छूट गया है यार. I'm sure आपका भी बहुत कुछ छूट गया होगा. Like हम बचपन में बहुत सारी चीज़ें करना पसंद करते थे. And why don't you pause this video here and comment down below कि आपको as a child top 3 चीज़ें क्या क्या करना पसंद था. I'll go first. My first thing that I loved doing as a child was पेड़ पे चढ़ना. I used to climb trees a lot. I loved trees as a child. और मेरे होम टाउन में अभी भी एक अमरूद का पेड़ है जिसमें मैं चढ़कर बैठी रहती थी बचपन में. I loved doing that even if my friends were not around and they did not come to play. तो मैं उस पेड़ पे चढ़ के अकेले ही खुद को entertain करती थी. So yeah, back then we did not used to get bored. अभी जैसे हम अकेले बैठे रहते हैं तो बोर हो जाते हैं, फ़ोन यूज़ करते हैं, बट तभी हम ऐसा नहीं करते थे. तब सिचुएशन ये अलग था. Anyway, my second thing that I had to do was going out and play. Until unless I'm sick or it's raining, I have to get out of my house and play. I had to. क्योंकि अभी I am the most homesick person you'll ever meet. मतलब अगर मेरा सब कुछ घर से हो जाता तो मैं घर से बाहर कदम भी ना रखूं, ऐसी परिस्थिति है. But back then I had to go out and play. मतलब name any game and I have played it as a child. फिर शाम को बेर तोड़ने जाना, तो ये सब तो था ही. And the last thing that I would say I used to love was spending time alone, I guess. I mean, I never enjoyed it as such, but now that I look back, I'm sure जितनी भी थोड़ी सी क्रिएटिविटी मेरे अंदर है, that is because of the alone afternoons I have spent with myself, laying on the floor and drawing my heart out, writing my heart out, making a collage out of pencil का छिलका. कुछ ना कुछ करती रहती थी हमेशा. And I'm still not very good with arts and crafts, to be very honest, but that never demotivated me or that never pushed me to stop doing it. I have been doing it all my childhood. I have been a failure all my childhood, but I still enjoyed doing it and I still do, and that's what matters, I guess. So these are the 3 things I love doing as a child, and I would like you to pause this video and comment 3 things that you loved doing as a child and you miss doing it as
as an adult or a teenager or wherever, whichever phase you are in right now. So yeah, that's that. Coming back to the story, तो जो हम डांस कर रहे थे केवी कालिम्पोंग में, उसमें I was in the front row, and since it was a group dance, so all of us were wearing the same clothes. तो वो हमारे साइज़ के हिसाब से टेलर किया गया था. एंड वो फ्रॉक तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास नहीं है, बट हमें एक बेल्ट पहनाई गई थी सेम फैब्रिक की, एंड दिस पीस ऑफ फैब्रिक यूज्ड टू बी माई बेल्ट. और समहाउ लाइक मेरी मम्मी ने इसे एक टेडी बेयर के अराउंड बांध कर रखा था, हेंस वो 15 सालों तक था एकदम इंटैक्ट. ओके, तो इस DIY के लिए हमें चाहिए फैब्रिक ग्लू, सिजर्स, स्केल, चॉक, फैब्रिक और एक ग्लास, प्रेफरेबली स्टील का, हेयर टाई या फिर इलास्टिक और आपके हाथ. तो मेक श्योर करें आप जो फैब्रिक यूज कर रहे हैं वो रेक्टेंगुलर हो. मेरा चूंकि स्ट्रिप था तो मैंने दोनों को काट कर, मतलब 2 पीसेस में काट कर उन्हें जोड़कर इस टाइप का एक रेक्टेंगुलर पीस बनाया. अब DIY हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले ग्लास के ऊपर आप इलास्टिक या हेयर टाई इस तरह से लगा दें. मैंने 2 हेयर टाई का इस्तेमाल किया है, अगर एक टूट गया इन केस. इसके बाद आप फैब्रिक को इलास्टिक के थ्रू ऐसे पास कराएं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं. बेटर व्यू. तो आपको रफल्स क्रिएट करते हुए आगे बढ़ते जाना है, और आप जितना ज्यादा फैब्रिक यूज करेंगे आपका उतना ज्यादा गैदर बनेगा और देखने में उतना ही क्यूट लगेगा. तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बड़ी आराम से समय लेकर गैदर बनाते हुए फैब्रिक को पास करवा रही हूं इलास्टिक के थ्रू या हेयर टाई के थ्रू, आप जो भी यूज कर रहे हैं. So this is the final structure of the scrunchie. अब जो 2 एजेस हैं उनको हमें जोड़ना है. इसके लिए आप सुई धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बहुत बेसिक स्टिचेस की जरूरत है, कुछ एडवांस्ड नहीं है. या फिर आप फैब्रिक ग्लू का भी मदद ले सकते हैं. बस दोनों सिरों पर लगा देना है. उसके बाद दोनों का मुंह एक साथ दबा देना है और उसे सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम देना है. अब आई गेट इट कि आप सूखने तक तो पकड़ कर नहीं बैठे रह सकते हैं, तो आप क्लिप्स का भी मदद ले सकते हैं. जो रॉ एजेस होंगी आखिर में वो इस तरह से दिखेंगी. अब हमें करना क्या है, एक रॉ एज को दूसरे वाले के अंदर घुसा देना है और उसे सील कर देना है. आप फैब्रिक ग्लू या फिर सुई धागे की मदद से कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर करें जो इलास्टिक या फिर हेयर टाई है वो अंदर मूव करने का उसको स्पेस मिले. एंड दैट्स इट, आपका स्क्रंची तैयार हो जाएगा. I do want to watch this video later, let's say आज से 5 साल या 10 साल बाद, when I feel low or maybe I just want to like keep a track of what I was 5 years back. And recently I think I have been doing a lot of introspection and trying to connect with my inner self, my younger self, because I do miss my younger self. That child was a star. She still is a star for me, but I do miss her. So I kind of want to reconnect with her. That's where I am right now in my life, and I would love to know your journey and where are you on that journey? Where do you see yourself in that journey? How connected do you feel with your inner self, with your younger self? Do you miss your younger self or not? Let's start a conversation in the comments. Let me know your views in the comment section below. I would love to know your feedback regarding this video so that I know if I should make these kind of videos in the future or not. And I'll see you in my next video. Till then, share it with any of your older friends, any childhood friend. And if you have not subscribed to my channel yet, don't forget to subscribe to my channel, turn the bell notification on, and I'll see you in my next video. Till then, bye.